Let's we move to chapter number 4, second lecture. That is that in previous lecture we have discussed up to here page number 59. Now we move to topic number 4.2, population stabilization and birth control. In the last century and all-round development in various fields significantly improved the quality of life of the people. What happened? क्या हुआ? छेल्ले डिकेड्स में इसमें सेंचुरीज में क्या हुआ? Quality of life is improved. How it is improved? Before people did not have that these all what mobile phone and these AC and that all things, net and cell phone and even before 125 years in India, radio was not available. So it was very difficult life. Now we have the AC and heater and this and that all is improve our quality, life quality. However, increased health facilities along with the better living conditions and an explosive impact on the growth of population. बोलो what happened due to it? क्या हुआ? ये सब होने से एक्सप्लोसिव पॉपुलेशन इन एक्सप्लोज हो गया. एक्सप्लोज मीन्स बहुत ज़्यादा रेपिडली बढ़ गया. जैसे एक्सप्लोजन होता है ना, वो ड्यूरिंग दैट दिवाली क्रैकर्स ये सब मेरा को एकदम वो ब्लास्ट एक्सप्लोज हो गया. ऐसे ही पॉपुलेशन एक बहुत ज़्यादा बढ़ गया. The world population which was around 2 billion, not million, billion, means 2000 million. In 1900 rocketed to around 6 billion, means by 2000 and 7.2 billion in 2011. बोलो 1900 में कितना था? 2 बिलियन. तो 2000 में कितना हो गया? 6 बिलियन. एंड 2011 में कितना हो गया? 7.2 बिलियन. A similarly trend was observed in India too. Our population which was approximately 350 million at the time of our independence reached close to the billion mark by 2000. 47 में जब 1947 में we earned our independence, we were only 350 million, means 35 crores. Now we are in 2000. We are 1.2 billion in May 2011. A rapid decline in death rate. Just wait. ये ऊपर का इतना है, उसको पूरा टिक करो and put the question mark. This was asked in Buchket as well as in the NEET कि कौन से टाइम पे इंडिया की के वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी थी. Now look here. A rapid decline in death rate. बोलो क्या आपने डिक्लाइन हुआ? Death rate. Maternal mortality rate, MMR. Maternal mortality rate. What is the meaning of? At the time of the delivery, मदर का डेथ होने का रेट कम हो गया because बेस्ट फैसिलिटी मेडिसिन एंड दैट अवेलेबिलिटी. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, IMR. इन्फेंट न्यू बॉर्न चाइल्ड का डेथ बहुत कम हो जाएगा. क्यों? Now we have the vaccines and that also बच्चों की भी डेथ कम होगी. As well as increase in number of the people of reproductive ages are probably reason for this. Reproductive एज पे जाने वाले लोगों की पीपल्स के नंबर्स भी कैसा हो गए? इंक्रीज हो गए. क्योंकि पहले तो क्या होता था, जितने बर्थ लेते थे उसमें से आधे तो मर जाते थे. अब तो जितने बर्थ लेते सभी अलाउ रहते हैं. All are living, all are allowed to remain alive. So all achieve the reproductive age. As all the age of the reproductive age, तो बोलो reproductive age की के नंबर्स बढ़ गए तो वो भी जब अपने जो रिप्रोडक्शन करेंगे तो ऑटोमेटिकली नंबर वो बहुत ज़्यादा बढ़ता रहेगा पॉपुलेशन में. As well as increase in number of the people in reproductive age probably reason for this. ये लास्ट 3 लाइन को हमने जो अभी हमने पढ़ा उसको टिक मार्क करो. They may ask what are the main reason to increase the population.
through our RCH program, reproductive and child health care. Though we could bring down the population growth rate, हमने थोड़ा population growth rate कम किया है, but it is not sufficient. It was only marginal है. According to the 2011 census report, the population growth rate was about 2%. 2% means per 100 people per year. एक ईयर में 100 people में 2 न्यू बॉर्न होते हैं every year. That is the 20. बोलो 100 में 2, 1000 में 20 होता है, तो 20 per 1000 per year. परसेंट में गिनते तो हमको 100 में गिनना पड़ेगा पर ईयर, पर यहाँ 20 कर दिया है तो फिर हम 1000 पे आएगा. A rate in which our population could increase rapidly. बोलो कौन सा रेट है हमारा 20 per 1000 per year. Such an alarming growth rate could lead to an absolute scarcity of even the basic requirement, that is the food, shelter, clothing, in spite of significant progress made in those areas. In our India, we have made a significant growth. New research हुए, इतना प्रोडक्शन, हमारा फील्ड में प्रोडक्शन बढ़ गया, क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ गया, क्या कहेंगे, वाइट रिवोल्यूशन मीन्स मिल्क प्रोडक्शन बढ़ गया, ग्रीन रिवोल्यूशन मीन्स हमारा जो ये कुछ वेजिटेबल है ये सब ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ गया. We have the multi-story buildings and they all availability, but still we are not gaining anything. Because जितना हम बढ़ाते उससे नहीं ज़्यादा, तो हमारा क्या है, पॉपुलेशन रेट ज़्यादा है, तो वो जितना भी इम्प्रूवमेंट होता है वो सब यूज हो जाता है, कोई हमको बेनिफिट मिलता नहीं है. Therefore the government was forced to make up the serious measure to check the population growth rate. ये लास्ट है, उसको अपने therefore है ना, वहाँ से यहाँ तक करो, बाद में टिक करो, इसको पूरा हाईलाइट करके टिक करो, लिखो रीजन, तो वहाँ से रीजन आया था. Why government was forced to take up the serious measure to check the population growth rate, पूरा पैराग्राफ ही आ जाएगा, क्योंकि तुम पहले से इंडिया में कितने पीपल है, वन में कितने हैं, क्या हुआ, किससे हुआ, सब समझाओगे तो फिर एक्सप्लेनेशन आएगा. The most important step to overcome the problem is to motivate smaller families. बोलो इसका एक ही है क्या, फैमिली स्मॉल होनी चाहिए. By using the various contraceptive methods. Contraceptive method यानी कि आफ्टर मैरिज बेबी को आने से रोकना. You might have seen advertisement in the media as well as the posters, bills, etc. showing the happy couple with the 2 children for slogan हम दो हमारे दो, we do our do. Many couples, mostly the young urban working ones, have even adopted a one child norm. कितने चाइल्ड का उन्होंने मेथड रखा है, 1 child. अगर जो अभी सभी 2 चाइल्ड का नॉर्म कर देंगे तो क्या होगा, हमारी जो भी पॉपुलेशन है वही क्या वही बन जाएगी, बिकॉज मदर फादर 2 चाइल्ड. जब ये मदर फादर का डेथ कोई हुई थी तो बोले कितने रह गए, 2 रह गए, 2 थे, 2 नहीं हुआ है, उनका डेथ हुआ 2 अब रह गए. इनके भी बोलो ऐसे अपना एवरी टाइम 2 जो है, 1 कपल है उसके 2 आएंगे तो काम बोल के बोल देगा. बट आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट पॉसिबल. Many couples have only the 1 child now. Why? अगर जो वैसे वर्क में है, कोई रिसर्च वर्क में साइंटिस्ट है, कोई अपने एयरफोर्स में है, कोई पायलट है, ऐसी जो लेडी है तो उनको इतना टाइम नहीं होता कि दे कैन लुक आफ्टर फॉर देयर चाइल्ड, सो दे हैव द नॉर्म्स ऑफ ओनली 1 child. Statutory raising the marriageable age of the female of the 18 years and that of the male of the 21 years. दो रिप्रोडक्टिव एबिलिटी तो 14-15 एज पे आ जाती है, बट क्या है मैरिजेबल एज कौन सी है, फीमेल में 18 और मेरी कौन सी है 20, जिससे क्या जो भी टाइम निकल के इतना निकल. Then incentives given to couples with the small families are 2 of them other measures taken to tackle this problem. Let us describe the some of the common and used conceptually method which help prevent the unwanted pregnancy. बोलो कौन सी कॉन्सेप्टिव मेथड्स हैं, तो ये यहाँ पे हमने लिया. अब वो जो भी मेथड है उससे क्या चीज होती है वो यहाँ पे अभी हम देखते हैं. देखो ये जो है ये सेकंड पैराग्राफ, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, तो सेकंड पैराग्राफ को टिक करके वहाँ पे लिखो SQ. Now the short question means your MCQ and वो सब लेता है.
एमसीक्यू तो कोई प्रीवियस है, इसमें से क्या एमसीक्यू आएगा ना. वन क्वेश्चन इज आस्क्ड एंड नंबर्स ऑफ ऑप्शंस आर गिवन, फाइंड द राइट वन फ्रॉम बिलो. अब एक सेंटेंस दी है, उसमें से ऑप्शन है 1 3 6 9 इज राइट, 2 3 4 9 ये सब होता है. एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव में शुड बी यूजर फ्रेंडली. कौन सा नंबर 1 करो, यूजर फ्रेंडली. यूज करने वालों को उसे कोई इफेक्ट नहीं आनी चाहिए. इजीली अवेलेबल, इजीली अवेलेबिलिटी होनी चाहिए कि जब उनको चाहिए तब वो अवेलेबल हो जाए. जनरली दीज आर अवेलेबल इन मेडिकल स्टोर्स. इफेक्टिव एंड रिवर्सिबल विथ नॉन लिस्ट इफेक्ट साइड इफेक्ट्स. इफेक्टिव जब तक यूज करते हो उसकी इफेक्ट आनी चाहिए, जिससे चाइल्ड का इम्प्लांटेशन नहीं होता. बट वो जब यूज करना बंद कर दो, इम्प्लांटेशन होके वो रिवर्स उसकी इफेक्ट रिवर्स होके चाइल्ड इम्प्लांटेशन हो जाएगा और बेबी हो. और लेस साइड इफेक्ट्स. मेनी टाइम these all are used, they have the chemical so that तो बॉडी पे यूज इफेक्ट आने की है. बट वो इफेक्ट कैसी होनी चाहिए, साइड इफेक्ट्स कम से कम होनी चाहिए या तो नहीं होनी चाहिए. और द सेक्सुअल एक्ट ऑफ द यूजर, और सेक्सुअल उसका जो बिहेवियर है उस पर उसकी इफेक्ट नहीं आनी चाहिए कि ये होने से यूज करने से क्या हुआ, उसकी सेक्स एबिलिटी ही चली गई, ऐसा नहीं होना चाहिए. उसके सेक्स ऑर्गन डैमेज हो गए, वो भी नहीं. बोलो ये जो इतना यहाँ तक दिया है वो those are the requirement in any conceptivity. टिक करो. क्वेश्चन ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है. What requirement should be there in use conceptivity? चलो, a wide range of the contraceptive methods are presently available, which could be broadly grouped in the following categories. Namely, natural or traditional. Second one, barrier. Third one, IUDs. Fourth one, oral contraceptives. Fifth, injectables and implantation and surgical. ये सब हमको देखना है, एक के बाद एक इन पैराग्राफ आते हैं. बोलो यहाँ पे नंबर 1, तो नंबर 1 क्या आएगा, नेचुरल और ट्रेडिशनल. सेकंड नंबर 2 बैरियर. नंबर 3 IUDs. नंबर 4 oral contraceptives. नंबर 5 इंजेक्टेबल्स. नंबर जो कुछ आता है इम्प्लांट्स एंड सर्जिकल मेथड्स. लेट्स वी गो फॉर द फर्स्ट. बोलो फर्स्ट अभी हमने पेज नंबर 59 पे देखा. बोलो यहाँ पे लास्ट टू लाइन में फर्स्ट दिया है, कौन सा है, नेचुरल और ट्रेडिशनल. तो देखो यहाँ पे पेज नंबर 60 पे ये अपने दिया आएगा. बोलो क्या आएगा, नेचुरल मेथड दिखा, तो ये नंबर 1 आएगा. वो कहाँ तक उसका डिस्क्रिप्शन है, तो पूरा पैराग्राफ ओवर होता है. बोलो दिखा वो कॉन्डोम और फीमेल की फिगर दी, उसके बाजू में 8 मेथड का ऑल्सो हाई, वहाँ तक है. देखते हैं फर्स्ट मेथड क्या है. नेचुरल मेथड्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल अवॉइडिंग द चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म्स मीटिंग. स्पर्म जो रिलीज हुआ वो ओव्यूम में आके उसको साथ में मीट ही नहीं कर सके, फ्यूज ही नहीं कर सके, फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा. ऐसा कुछ करने का दोनों का फर्टिलाइजेशन पॉसिबल ही नहीं होगा. पीरियोडिकल एक्सटेंस is one such method in which the couples avoid the abstain from the coitus from the day 7 to 10 to 17 of the menstrual cycle. चैप्टर नंबर 3 में हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल देखी थी. मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो फिगर्स देखी थी, वो फिगर्स में 14 डेज पे बताया था ओव्यूलेशन होता है. ओव्यूलेशन होता है कि तुरंत वो ओव्यूल में ओव्यूम सेकेंडरी oocyte एंटर होता है, वही टाइम पे आके फर्टिलाइजेशन होना चाहिए. अब ये 14 डेज तो नॉर्मल फाइंड आउट करा है, बट ड्यू टू द काउंटिंग मिस्टेक बाय द फीमेल और ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक चेंजेस और ड्यू टू द फूड और ड्यू टू द मेनी अदर थिंग में पॉसिबल के 2-3 दिन पहले तक भी ओव्यूलेशन हो रहा है. में पॉसिबल के ओव्यूलेशन उसके बाद भी हो रहा है. तो क्या होना चाहिए उसके पहले, यानी कौन सा डे 10 डे, और यहाँ से 3 दिन बाद यानी कौन सा 17 डे. इसके बीच में कोइटस नहीं होना चाहिए, मैटिंग नहीं होना चाहिए, जिससे अगर जो उसके पहले और फिर बाद में कोइटस होगा तो प्रेगनेंसी के वहाँ तो चांस ही नहीं है, बिकॉज ओव्यूम इज नॉट अवेलेबल, और यहाँ पे कोइटस होना ही नहीं है, जिससे प्रेगनेंसी नहीं है. In one such method in which the couples avoid the or abstain from the coitus from the day 10 to 17 of the menstrual cycle, when ovulation could be expected. Yes, chances of the fertilization are very high during this period.
ये चांसेस ऑफ द फर्टिलाइजेशन इज वेरी हाई ड्यूरिंग दिस पीरियड, इसको हाईलाइट करो और क्वेश्चन मार्क कर दो, ये एमसीक्यू में आया था। इन which days of the menstrual cycle chances of the fertilization are very high? Days 10 to 17. It is called fertile period. हाँ, उसका नेम को भी हाईलाइट करो, fertile period। अब ये तुमको डेफिनेशन में आ सकते हो, fertile period कौन सा है? Therefore, by abstaining from the coitus during the this period, conception could be prevented with, बोलो ये एक हो गया। अब ये ट्रेडिशनल नेचुरल मेथड की सेकंड मेथड है, कौन सी? विड्रॉल और कोइटस इंटरप्टर्स is another method in which the male partner withdraws his penis from the vagina just before the ejaculation so as to avoid the insemination। मेल पार्टनर को जब ऐसा में लगता है कि उसके स्पर्म रिलीज होने वाले हैं, वो अपने टाइम पे वो अपने पेनिस को फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में से दूर कर देगा, जिससे जब भी वो इंजेक्शन होगा तो स्पर्म बॉडी के बाहर रहेंगे, बॉडी के अंदर जा नहीं सकते, तो वजाइना के बाहर आ जाने से फर्टिलाइजेशन का चांस नहीं होगा। लैक्टेशनल एमोनोरिया, एब्सेंस ऑफ मेन्स्ट्रुअल मेथड, बोलो लैक्टेशनल एमोनोरिया यानी क्या? एब्सेंस ऑफ मेन्स्ट्रुएशन। ये क्या है देखते हैं, इसको नंबर 3 करो। ये अपने कौन सा है? नेचुरल मेथड में थर्ड। तो नेचुरल मेथड में फर्स्ट आया पीरियोडिक एब्सेंशन, दूसरा आया विड्रॉल और कोइटस इंटरप्शन, और थर्ड आया लैक्टेशनल एमोनोरिया। Method is used for the fact that ovulation and therefore the cycle do not occur during the period of the intense lactation following parturition। जब पार्चुरेशन होता है, डिलीवरी होती है, उसके बाद में जब न्यूबॉर्न चाइल्ड मदर में ब्रेस्ट फीडिंग करता है, ड्यूरिंग दोज डेट पीरियड क्या होता है? दोज डेज imbalance of the hormones, and due to the imbalance of the hormone production of the ovum and the endometrium is not so effective, so it is not time when generally new implantation takes place। Therefore, as long as the mother breastfeeding the child fully, chances of the conception are almost nil। However, this method has been reported to be effective only up to the maximum period of 6 months following the parturition। parturition होने की कितने 6 महीने तक ही, अरे इवन उसमें भी इतनी इफेक्टिव नहीं है। As no medicines and devices are used in these methods, side effects are almost nil। Chances of failure though of this method are also high। ये जो लास्ट 2 सेंटेंसेस है उसको अब मैं टिक करो। साइड इफेक्ट्स आर ऑलमोस्ट नील, चांसेस ऑफ फेलियर भी है, मेथड ये अपने मेथड में बहुत हाई है चांसेस ऑफ फेलियर। तो देखो ये जो भी मेथड है, ये नेचुरल है, वो नेचुरल मेथड है, जो है उसकी अलग अलग 3 मेथड। तो देखो तुमको 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है नेचुरल मेथड, तो ये तीनों तीन मिस कर 2 मार्क्स में इसमें से कोई भी एक या दो अपने एक मेथड का आ सकता है। चलो पेज नंबर 59 पे लास्ट सेकंड में हमने लास्ट सेकंड लाइन में हमने देखा था, वो नेचुरल ट्रेडिशन को 1 किया था, बैरियर को नंबर 2 किया था। तो ये बैरियर मेथड, ये बैरियर कर दो, स्टॉप कर देना। स्पर्म में ऐसा कोई बैरियर आ गया कि वो ओव्यूम तक जा ही नहीं सकता। In barrier method, ovum and sperms are prevented from the physical meeting with the help of barriers। Such methods are available for both males and female partners। Condoms are barriers made up of the thin rubber latex sheet that are used to cover the penis in the male or the vagina and cervix in the female। Male के पेनिस को कवर कर देता है, या तो मेल को यूज नहीं करना है, फीमेल को यूज करना है, तो उसका भी मेल ने पेनिस को कवर करता है, फीमेल को वजाइना या सर्विक्स को पूरा कवर कर देता है। वो वजाइना सर्विक्स को कवर कर देता है तो स्पर्म अंदर एंटर नहीं होते, पेनिस को कवर कर देता है तो जो भी इंजेक्शन होता है उसमें से स्पर्म बाहर नहीं आ सकता। दिस कैन प्रिवेंट कंसेप्शंस। निरोध इज अ पॉपुलर ब्रांड condom for the male। Use of condoms has increased in recent years due to the additional benefit of the protecting the user name, contracting STIs and AIDS। बोलो इससे क्या होता है? जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है वो भी नहीं होते एड्स जैसे। क्यों? बिकॉज मेल को अगर जो कोई डिजीज है तो क्या होगा, मेल का पेनिस कवर हो गया है तो वो
इंटरनल जो फीमेल पार्टनर है उसके इंटरनल ऑर्गन के डायरेक्ट टच में नहीं आता है। तो जो फीमेल को है तो फीमेल मेल ने पेनिस पे जो वो अपने कवर करा है तो पेनिस के भी टच में इंटरनल ऑर्गन नहीं आते हैं। इससे STIs भी नहीं होता। Both the male and female condoms are disposable. तो उनको डिस्पोज कर देते हैं। Can be self inserted and thereby give the privacy to user. अपने आप से उसको यूज करने का होता है, मेडिकल प्रैक्टिशनर की जरूरत नहीं है। Diaphragm, cervical caps and vaults are also barriers made of rubber that are inserted for the female reproductive tract. बोलो, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को कवर करने वाले तो क्या आएगा? उसको कोंडोम नहीं कहते, उसको डायफ्राम कहते हैं, सर्वाइकल कैप्स कहते हैं या वॉल्ट्स। To cover the cervix during the coitus, they prevent conception by blocking the entry of the sperm through the cervix. ऐसा वो cervix के ऊपर के वहाँ पे अपने कवर कर देता है कि sperm अंदर एंटर हो ही नहीं सकता। They are reusable. उसका सबसे बड़ा बेनिफिट है उसका यूज बार-बार हो सकता है। Spermicidal creams, एक क्रीम आता है। Jellies and foams are usually used along with those barriers to increase their contraceptive efficiency. तो क्रीम है कि जो भी वो दूसरा जेली है कि फॉर्म से उससे क्या आपको लगेगा ऑक्सीजन कैन नॉट एंटर इनसाइड। तो जब स्पर्म उसमें अपने जाता है वो बैरियर तो है पर वहाँ पे क्रीम है जो कुछ तो बोलो वहाँ पे अपने जाएगा तो क्या होगा? ऑक्सीजन नहीं होने से स्पर्म मर जाएगा। तो ये सेकंड मेथड होगा। चलो थर्ड मेथड पहले देखो पेज नंबर 59 पे लास्ट सेकंड लाइन में हमने थर्ड नेम क्या लिखा है? IUDS। तो देखो यहाँ पेज नंबर 60 पे लास्ट पैराग्राफ से हुआ IUDS मेथड स्टार्ट थर्ड। उसको नंबर 3 कर दो यहाँ पे। बोलो यहाँ पे पेज स्टार्ट होता है यहाँ पे नंबर 1 बीच में इन बैरियर है वहाँ नंबर 2 ये IUDS वाला यहाँ पे हैगा अनदर इफेक्टिव एंड पॉपुलर वो नंबर 3। तो नंबर 3 में क्या आएगा? अनदर इफेक्टिव एंड पॉपुलर मेथड आर यूज ऑफ द इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस IUDS फुल फॉर्म याद रखना। These devices are inserted by doctors or expert nurses in the uterus or uterus through vagina. vagina से फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर जो उसका जो पार्ट है जहाँ से हम एंटर होते हैंगे वो अपने पूरा पार्ट कवर कर देते हैं या तो उसके अंदर रख देते हैं। These IUDs intrauterine devices are presently available on non-medicated IUDs। उसमें मेडिकल का जो हार्मोन उसका यूज नहीं होता उसको बोलते हैं नॉन मेडिकेटेड IUDs। एग्जाम्पल लिपेज लूप याद रखना। ये जो अलग अलग यहाँ पे एग्जाम्पल आ रहे हैं वो भी आगे आएगा। लिपेज यूज इज नॉन मेडिकल। कॉपर रिलीजिंग IUDs जिसमें से कॉपर आंस रिलीज होते हैं उसको कॉपर रिलीजिंग कहेंगे। कौन से CUT मींस कॉपर T। दैट फिगर इज गिवन फिगर 4.2 CU7 कॉपर 7 मल्टीलोडेड 375 एंड द हार्मोन रिलीजिंग IUDs ऐसा IUDs है जो अंदर अपने रखने के बाद में क्या होता है हार्मोन को रिलीज करता है। हार्मोन रिलीज करता है तो क्या होता है वो हार्मोन फीमेल के बॉडी के अंदर इम्बैलेंस करता है। तो हार्मोनल इम्बैलेंस से ओव्यूलेशन ही नहीं होता है या तो फिर अगर जो होता भी है तो एंडोमेट्रियम पे वो इम्बैलेंस कर देता है तो इम्प्लांटेशन नहीं। बोलो ये हार्मोन रिलीजिंग में IUDs में प्रोजेस्टेरोन एंड LNG-20 ये जो दो है वो तुमको याद रखना है। IUDs increase the phagocytes of the sperms। phagocytes of the sperms मींस जो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर जो भी न्यूक्लियस है वो सब है वो उसके अंदर ऐसे थोड़े से रहते हैं वो जो क्या करते हैं स्पर्म को खा जाते हैं स्पर्म को डिस्ट्रॉय करते हैं। वो एक इफेक्टिवनेस बढ़ा भी देता है। within the uterus and the copper ions releasing suppress the sperm motility and fertilizing capacity। हाईलाइट करो बोलो कॉपर आयन से क्या होता है जो स्पर्म की मोटिलिटी वो डिक्रीज होती है एज वेल एज फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी भी डिक्रीज हो जाती है। ये दोनों अलग अलग आते हैं कि कॉपर की इफेक्ट क्या है वो भी पूछ सकते हैं और तो दूसरा ये भी पूछ सकते हैं कि IUD से दूसरा क्या इंक्रीज होता है तो फेगोसाइटिस ऑफ स्पर्म्स। द हार्मोन रिलीजिंग IUDs in addition
make the uterus unsuitable for the implantation and the cervix hostile for to the sperms. वो यूटेरस का जो एंडोमेट्रियम है उसको ऐसा बना देता है कि उसके ऊपर इम्प्लांटेशन, साथ में जो सर्विस का जो होल जो शरीर का पूरा रीजन है उसको इतना थिक कर देता है जो भी उसके स्प्रे से कि स्पर्म अंदर इंटर हो सकता नहीं। IUDs are ideal contraceptives for the females who want to delay the pregnancy and or space for the children. उसको प्रेगनेंसी डिले करनी आफ्टर मैरिज वो रिसर्च वर्क में पायलट है कि और कोई किसी में वर्क में है, पुलिस में है कि और कोई यहाँ पे उसके लिए, और या तो एक चाइल्ड और दूसरा चाइल्ड नहीं चाहिए उसके लिए। It is one of the most widely accepted methods of the contraception in India. तो इंडिया में चलो ये हुआ नंबर 3। बोलो अब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पेज नंबर 59 पे लास्ट सेकंड लाइन में दी, और देखो IUDs के बाद नंबर 4 क्या है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। तो यहाँ पे भी देखो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आए पेज नंबर 61 पे सेकंड पैराग्राफ दिखा, तो उसको भी नंबर 4 लिखो। Oral administration of the small doses of the either progestins or the progestogens estrogen combination, खाली एक का भी हो सकता है जिसमें प्रोजेस्टेरोजेंस हो सकता है, या तो क्या होता है प्रोजेस्ट्रोजेन एंड एस्ट्रोजन। देखो अलग है, ओनली सिंगल होगा तो प्रोजेस्ट्रोन एंड एस्ट्रोजन दोनों एक साथ में असर करे ऐसा कोई केमिकल, और वो अलग अलग और दोनों को लेना है तो दोनों का मिक्सचर होगा। Is in another contraceptive method used by the females. They are used in the form of the tablets and hence are popularly called as the pills. क्या बोलते हैं उसको, pills। तो देखो ये नंबर 4 है ना ओरल, उसको पूरा ओरल नहीं पूछेंगे बट pills करके पूछेंगे तो भी तुमको आना चाहिए, ये तेरे Pills have been taken daily for a period of 21 days, starting preferably within the first 5 days of the menstrual cycle. Menstrual cycle जिस दिन से स्टार्ट हुई वो फर्स्ट डे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ डे आया उस दिन से लेंगे। कंटिन्यूस 21 डेज विदाउट मिसिंग। बोलो फिफ्थ डे से हमने वो लेडी वो अपने स्टार्ट करती है, 21 डेज नहीं तो फिफ्थ भी आ गई है, अब दूसरे 21 डेज रहेंगे, जो 20 करेंगे 25 मींस फिफ्थ डे टू 25th डे। चलो 25th डे तक लिए तो फिर हमने क्या होगा 26, 27, 28 को ओव्यूलेशन वापस न्यू मेंस्ट्रुअल साइकिल में, फिर 1 2 3 4 यानी फिर वापस फिफ्थ डे आएगा तो न्यू अपने राउंड को पीस का स्टार्ट को होगा, तो बीच में के 7 दिन नहीं, कौन से 7 दिन नहीं लेंगे वो भी यहाँ आने चाहिए, कौन से दिन लेना वो भी आना चाहिए, कौन सा दिन लेना है वो अब नहीं आ रहा कोई तो 7, तो इजीली यू कैन रिमेंबर। फिफ्थ डे से स्टार्ट करने का 25th डे तक लेना चाहिए, मींस 21 डेज, ये 26, 27, 28 डेज को नहीं लेना है, 1 2 3 और 4 डेज को, ये टोटल 7 डेज नहीं। For a period of 21 days, starting preferably within the first 5 days of the menstrual cycle after the gap of the 7 days. कौन से 26, 27, 28, फिर न्यू साइकिल का 1 2 3 4, during which menstruation occurs, it has been repeated the same pattern till the female desire to prevent conception. They inhibit ovulation, बोलो ovulation को स्टॉप करते हैं, and implantation, implantation को inhibit करते हैं, inhibit यानी stop, as well as alter the quality of the cervical mucus to prevent and retard the entry of the sperm. सर्वाइकल का जो म्यूकस है उसको भी इतना ठीक कर देते हैं स्पर्म का इजीली एंट्री होती नहीं है, वो भी जाती है तो इतनी लेट को भी को पड़ेगा ऐसा नहीं। सहेली सॉरी sperm pills are very effective with lesser side effects and as well as accepted by the females। और उसमें कौन सी बहुत पॉपुलर है, सहेली। सहेली द न्यू ओरल कॉन्सेप्टिवली फॉर द फीमेल्स कंटेन नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन। कौन सी प्रिपरेशन है, नॉन स्टेरॉइडल, उसके ने पहले जो आती थी वो स्टेरॉइड, ये सहेली इंडिया में डेवलप हुई है, लखनऊ में, जो प्रीवियस उसमें टॉप में ले। इट इज अ वंस अ वीक पिल्स, डेली नहीं लेनी पड़ती, वीक में एक बार लेनी, with a very few side effects and high concentrative value।
चलो ये हो गया नंबर 4। चलो फिर पेज नंबर 59 पे ये देखो नंबर 6 पे क्या था, इंजेक्टेबल्स। तो देखो यहाँ पेज नंबर 61 पे इंजेक्टेबल्स मिला कोई प्रोजेस्टेरोजेंस एलोन और कॉम्बिनेशन विद एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन अकेला या एस्ट्रोजन के साथ में कैन आल्सो बी यूज्ड बाय फीमेल एज इंजेक्शन और इम्प्लांट्स अंडर द स्किन। स्किन के नीचे रख देते, उसके आम के या स्किन के नीचे वहाँ पे अपने को जैसा कुछ सब कट करके अंदर कुछ रख देते तो अंदर से वो हार्मोन रिलीज होते ही रहते हैं। हार्मोन रिलीज होते रहते तो क्या होता है, हार्मोन इम्बैलेंस प्रोड्यूस होता है। ड्यू टू द हार्मोन इम्बैलेंस मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब होता है। Their mode of action is similar to that of the pills. The difference is pills are taken by oral and these are given injectables. And effective periods for the month under the skin, their mode of action is similar to the that of the pills, and their effective periods are much longer. ना उसकी effectiveness बढ़ रही pills से ज़्यादा होती है। pills everyday लेनी पड़ती है। ये तो जब इंजेक्शन लेते हैं जहाँ तक वो अंदर है बॉडी में उसकी इफेक्ट रहेगी, या तो उसको इम्प्लांट अंदर करते हैं जहाँ तक वो चीज़ अंदर रहेगी उसमें से हार्मोन रिलीज होते रहेंगे उसकी इफेक्ट आती है। Administration of the progesterone or progesterone estrogen combination or IUDs within 72 hours of the coitus have been found to be very effective as emergency contraceptive, as they could be used to avoid possible pregnancy due to the rape or casual unprotected intercourse. अब बोलो एक बार इंटरकोर्स हो गया नहीं फिर ऐसा अपने लगा कि फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो क्या, तो ये इंटरकोर्स होने के विदिन 72 आवर्स लेने वाला इंजेक्शन और पिल्स भी होते हैं। उससे क्या होता है, न्यू चाइल्ड आने की चांसेस खत्म हो जाते हैं। वो जो पिल्स है इंजेक्शन है वो में क्या 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 अपने करता है, सपोज फर्टिलाइजेशन हो भी गया तो जो मोरुलर स्टेज वाला एम्ब्रियो आएगा वो जब इम्प्लांट होगा तो एंडोमेट्रियम का जो डेवलपमेंट है उसको डिस्टर्ब कर देता है, तो इम्प्लांटेशन होता। चलो देन आफ्टर न्यू नेक्स्ट वन नंबर 5 के 6 कौन सा था, जो भी इंजेक्टेबल का नहीं, इम्प्लांटेशन इन सर्जिकल मेथड्स। तो 61 पे न्यू नंबर है तो आगे नंबर इज 6। जो भी सर्जिकल मेथड्स आर आल्सो कॉल्ड स्टरलाइजेशन are generally advisable for the male female partner as a terminal method to prevent any terminal highlight करो, ये टर्मिनल है, एक बार किया फिर टाइम के लिए वो कभी भी चाइल्ड उनको नहीं मिलेगा। देखो यहाँ पे फिगर अपने देखो वैसेक्टोमी दैट इज द फिगर फॉर द मेल के अंदर तुम देख सकते हो वासा डिफरेंस जो है उसको ने कट करके टाइट कर दिया है। बोलो टाइट एंड कट कर दिया तो क्या होगा, जो भी स्पर्म टेस्टिस में से रिलीज होंगे आगे वासा डिफरेंस से आगे जाएंगे नहीं तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। देखो फिगर 4.4 बी ट्यूबेक्टोमी फीमेल की ही, बोलो फीमेल में क्या हुआ, उसकी जो फेलोपियन ट्यूब है वो फेलोपियन ट्यूब को क्या आपने करा, फेलोपियन ट्यूब को टाइट करके कट कर दिया तो क्या होगा, अगर जो स्पर्म अंदर एंटर होने जाएंगे तो भी स्पर्म अंदर तक नहीं जा सकेंगे जिससे वो जाके फर्टिलाइजेशन करेगा, और ओव्यूम भी जो आएगा तो वो बाहर आ सकेगा नहीं, यानी फर्टिलाइजेशन कोई चांस है ध्यान दो। टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट एनी मोर pregnancies. Surgical interventions blocks the gametes transport and thereby prevent the conception. Sterilization procedure in the male called vasectomy. मेल में क्या बोलेंगे, vasectomy, हाईलाइट करो, and that in female tubectomy. In vasectomy, a small part of the bile difference is removed or tied up through a small incision of the scrotum. Whereas in the tubectomy highlight करो female की, a small part of the fallopian tube is removed or tied up through the small incision in the abdomen or through the vagina. ये अपने जो है स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर से ये यहाँ तक है, ये भी आ सकता है। हाउ वासेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी इज इफेक्टिव। These techniques are very highly effective, but their reversible is very poor. रिवर्सिबल फिर से अगर कोई वो कपल बोलता है कि हमको अब चाइल्ड चाहिए तो वो पॉसिबल नहीं है। It needs to be emphasized that the selection of the suitable contraceptive method and its
use should be always undertaken in consultation with the qualified medical professional. जो इसके एक्सपर्ट डॉक्टर्स है उनके अंदर में ही होना चाहिए. कोई ऐसा वैसा करेगा तो वो बहुत हार्मफुल हो सकता है, डेथ भी हो सकती है. One must also remember that the contraceptives are not the regular requirements for the maintenance of the reproductive health. Reproductive health की जो उस पर इफेक्ट आती है बिकॉज आवर बॉडी नेचर ने जो बनाया है वो रिप्रोडक्शन करने के लिए बनाया है, इसको स्टॉप करने के लिए. बट हमारे नेशन के उसके लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, हमारी नीड के लिए थोड़े टाइम के लिए हम उसको ब्लॉक कर सकते हैं. One must also remember that the contraceptives are not regular requirements for the maintenance of the reproductive health. In fact, they are the practice against a natural reproductive event. That is a conception, natural pregnancy. Pregnancy conception क्या है? Natural reproductive event से उसके अगेंस्ट में हम जा रहे हैं. One is forced to use this method either to prevent pregnancy or to delay space pregnancy due to the personal reason. No doubt, the widespread use of these methods have a significant role in checking uncontrolled growth population. बोलो, इन कपल के पर्सनल रीजन के लिए यूज होना चाहिए. ये कोई लेडी की हेल्थ अच्छी नहीं है, ब्लड नॉर्मल आरबीसी लेवल है, यानी हम बोलते ब्लड बॉडी में कम है, कि वो कपल को अभी खुद के फील्ड में स्टेबल होना है, कि कोई ऐसा उनका फील्ड में ट्रांसफरेबल जॉब है जो ट्रांसफर बहुत हो सकती है, तो अभी उनको चाइल्ड नहीं चाहिए, वो सबके लिए सब यूजफुल है. However, there possible ill effects like nausea, abdominal pain, breakthrough bleeding ज़्यादा होना, irregular menstrual bleeding और even breast cancer भी हो सकता है. Though not very significant, should not be totally ignored. ये सबको भी इग्नोर नहीं कर सकते. ये लास्ट पैराग्राफ भी पूछ सकते हैं और आई थिंक वो पूरी एग्जाम में आया था. Why this whole method or contraceptives are not advisable? It is only temporary. उसके अंदर किया है. Contraceptive use are only temporary. ये उसमें ये लास्ट पैराग्राफ है. तो देखो हमको पेज नंबर 61 पे जो फिगर्स है वासेक्टोमी फिगरेक्टोमी, वो फिगर हमको ड्रॉ करनी है. देखो यहाँ पे मैं जो फिगर बता रहा हूँ इसी स्पीड में बताऊंगा. देखो पेज नंबर 61 पे वासेक्टोमी. तो वासेक्टोमी ड्रॉ करने के लिए पहले क्या करना है? तो पहले यहाँ अमेरिका यूरिनरी ब्लैडर का पार्ट, यूरिनरी ब्लैडर का पार्ट में तुम देखोगे तो यहाँ से इतना जो आता रहेगा उसके बाद में ये ऐसा जो शेप है वहाँ से इसके ऊपर से आने वाली ये वासा डिफरेंस, ये जो वासा डिफरेंस यहाँ से आती है, फिर यहाँ पर भी ये यहाँ पे ऐसा 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 और यहाँ पे दोनों फ्यूज हो. और दोनों के साइड पे यहाँ पे तुम देखोगे इतना अलग से ये जो भी ग्लैंड्स में सब है उसका पोर्शन. ये सब ग्लैंड है. यहाँ से आने के बाद में इतना जो रीजन यहाँ से आता है दोनों यहाँ से फ्यूज होके ये धनकोटेपन यहाँ से आप देखोगे तो थोड़ा ऐसा ब्रॉड है. ये ब्रॉड होने के बाद में फिर थोड़ा सरका नहीं, नेरो होने के बाद में बन सके वो ब्रॉड होके इलांगेट. उसमें भी तुम एंड पोर्शन देखोगे तो एंड पोर्शन पे वापस तुम देखोगे थोड़ा सा नेरो के बन सके ब्रॉड नॉर्मल.
अब देखो यहाँ पे ये जो पोर्शन है, ये जो इतना हमने ये ड्रॉ कराएगा, उसमें ये जो ब्रॉड पार्ट होता है उसके ऊपर उसकी जो भी लेंथ जो कुछ भी है वो उसके नीचे देखोगे उसके यहाँ से देखोगे तो ये जो लाइन है वो अपने वो लो, ये अपने ड्रॉ करने के पहले यहाँ से इसकी जो तो टिश्यू से टिश्यू ड्रॉ कर देंगे तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा। टिश्यू ड्रॉ तो टिश्यू ड्रॉ करने के बाद में यहाँ से यहाँ नीचे भी जो इसकी सपोर्टिव टिश्यू, इसके साथ में ये यहाँ से आने के बाद में ये यहाँ पे है, ये ट्यूबेक्टोमी को हम वासेक्टोमी कट करके बाइंड करके टेस्टिस ये सब ऊपर से जाना चाहिए। मेनी टाइम स्टूडेंट्स ऐसे डायरेक्ट हो गए, ऐसा नहीं, सब पूरा काम होके जाना चाहिए। प्लीज इसमें भी यहाँ से कट होके इसे स्किन फिगर होगा। तो ट्यूबेक्टोमी में क्या करना है यार, तो उसमें भी पहले पोर्शन ऑफ द यूटेरस यूटेरस की जो वॉल है वो वॉल बहुत ठीक होती है, यानी इंटरनल पोर्शन यहाँ पे आएगा सर्वाइकल सर्वाइक्स नेरो बन जाएगा। ये और होने के बाद में वजाइना, तो ऐसा तुम रो करो ये देखो इतना मुझे अंदर से फिर से इसके ऊपर और न करता हूँ तो वो सामने आएगी लाइनिंग करता हूँ और शुरू ड्रो दिस वन। इतना ये शेप फिर अंदर से इसके इंटरनल ये करने के बाद में इसकी यही रोल्स है। चलो अब अपने देखो यहाँ पे क्या है, तो फेलोपियन ट्यूब यूमेंसी ऐसा ऊपर तक ऐसे अपने जाके यहाँ पे बोले यहाँ पे अपने क्या आपने देखा
ओवरीज, ओवरी को कनेक्ट करने वाली जो भी उसकी टिश्यूज होती है पता है वो सब यहाँ पे ये आया तो ओविडक्ट विथ फिंगरिंग, उसको यहाँ से बाइंड एंड कर, यहाँ से भी हम अपनी जगह ड्रॉ करेंगे तो कोई इसका भी रीजन सॉरी ये हुआ आज का टॉपिक।